इतने गरीब लोग हैं, पिछले 10 साल के अंदर किसी भी किसानों ने आत्महत्या की, वो सबसे ज़्यादा पटेल समुदाय से आते हैं। सपोर्ट सबसे ज़्यादा हमें 18 से 42 तक का है। इस बात से अन्याय हुआ है उनसे कि हमें भी जॉब नहीं मिली, हम भी खुद अच्छी डिग्री रखते हैं और डिग्री ना होने का जॉब भी नहीं मिलती, और इसी वो लोग सबसे ज़्यादा, और जो वृद्ध है वो इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी के हक के लिए, और वही लोग हमें सपोर्ट कर, बहन बेटियां भी सपोर्ट कर रही है, माताएं सपोर्ट कर रही है, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। Gujarat's Patel community held a mega rally in Ahmedabad today led by 21-year-old Hardik Patel to demand reservations under the OBC quota. Over the last few months, Hardik Patel has emerged as a powerful force leading hundreds of rallies. Today he warned the BJP government in the state of consequences in the 2017 polls if the quota wasn't given. The Patel agitation is a huge political challenge for the state government, for whom the Patels have been their biggest supporters, and the young Hardik proving to be quite a political. शुरुआत चिंगारी हमने दी थी, आग अपने आप पूरे हिंदू गुजरात में लग गई, हर तालुका हर जिले में सब लोग दौड़ने लगे, हर गांव हर शहर में हर घर पे 5 या 10% लोग समृद्ध होना, पैसे होना, तो पूरे समाज पर ये दब्बा नहीं होना चाहिए कि पूरा समाज समृद्ध है। सौराष्ट्र के गांव में चले जाओ तो शाम को चूल्हे पे रोटी नहीं जलती। मेरा एक्सपीरियंस होना ना होना बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरे साथ जो 52 लाख लोगों का एक्सपीरियंस है वो सबसे बड़ी बात है। हम यहाँ किसी समुदाय के खिलाफ नहीं आए हैं, किसी सरकार के खिलाफ या किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं आए हैं। हम यहाँ सिर्फ अपना हक मांगने आए हैं। हमारे देश के लिए आए, हम सबके लिए आए, हमें चाहिए, हमारा हक चाहिए। हिंदुस्तान क्रांतियों की भूमि है, गुजरात भी क्रांतियों की भूमि है। गांधी और सरदार के मार्ग पर हम चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम इसी भारत की भूमि पर चंद्रशेखर को भी देखा और भगत सिंह को भी देखा है। तो जाहिर सी बात है, पहले बात करो प्यार से, गांधी सरदार बनो, ज़रूरत पड़ने पर चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह बनो, ज़रूरत पड़ने पर वो रास्ता सही है। हमारे लोग अभी तक माने हैं तो अभी भी मानेंगे, और जिस दिन हमारी 1 करोड़ 80 लाख पाटीदारों की मांगे खत्म होंगी, उस दिन आंदोलन भी खत्म हो जाएगा। ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। A 21-year-old student, Hardik Patel, bringing Ahmedabad to a standstill as over 3 lakh young men from the Patel community gathered in Ahmedabad's GMDC ground. All schools and colleges were closed. Political observers said the city hadn't seen a community rally of this size in years. A fiery speech from Hardik Patel had the crowd cheering. Ironically, the icon chosen by his movement for reservations is Iron Man Sardar Patel. Many at today's rally wore Patel masks and t-shirts, the same leader appropriated by Prime Minister Modi from the Congress in his 2014 election campaign. 180 मीटर की सरदार की प्रतिमा लगाकर राजनीतिक पॉलिटिकल बैकग्राउंड मजबूत करते हो, दिल में झांक कर देखो सरदार के दो भी विचार है या नहीं। This massive crowd, a show of strength by the Patidars, the Patel community, is a major concern for Gujarat Chief Minister Anandiben Patel, who has said that this quota drive is an insult to Sardar Patel, especially with municipal elections next month. Hardik Patel is the son of a BJP leader, and he warned his movement will have a direct political impact. 1985 में पंजाब बुखार का फेमस 2017 आ रहा है, कादों में किच्चा नहीं कभी करेगा, कमल कभी उगेगा भी नहीं। The Patels are traditionally and economically dominant and powerful caste in Gujarat, but they say this perception is faulty and the majority are economically backward, and hence the need to grant them reservations for government jobs and at educational institutions. In every community there is 1 or 2% who are rich, so it does not mean that only 2% can represent the whole community. Clearly tensions running high, the tempers are running high following this incident with the stone pelting between two groups of same community, ostensibly over the Patel rally which was returning from the collectorate, following which this trouble started. The government, however, maintains the Supreme Court had struck down similar reservations granted by other states. Though no one from the BJP spoke today, this is what the government spokesman had said on the issue a few days ago. हमने
जो अभी कानूनी और बंधारणीय व्यवस्था है इसके दायरे में रह के किस तरह से ये प्रश्न का सॉल्यूशन निराकरण हम कर सकते हैं इसके बारे में उनके सजेशन मांगे हैं। But with the protests entering its third month, a young man who can't stand for elections yet may hold the key to the BJP's fate in civic body elections across the state scheduled in October. In Ahmedabad, with camera person Pramod Arya and Natwar Parmar, Rohit Ban for NDTV. अच्छा, मैं उस पॉइंट पे आ रहा था, ये अचानक से बात इस आरक्षण की उठी कहाँ से? अभी तक बहुत सारी चीजें नहीं हो रही थी और अचानक से आप ये जो माहौल है उसी की बात कीजिए। वो आरक्षण की बहुत बड़ी है और सब लोग जानते हैं किस तरह का आरक्षण का माहौल उठा है, वो बात करनी नहीं। अब गुजरात में शांति कैसे बनाए रखे, गवर्नमेंट अपना स्टैंड कैसे क्लियर करे पुलिस की तरफ, वो एक बड़ी बात है। अरविंद केजरीवाल आपके सहयोगी रहे हैं, वो आप उनका यहाँ पूरा मुहिम आप उनकी चलाते रहे हैं आम आदमी पार्टी की, तो इसका मतलब अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से काम करते रहे हैं, आप ये भी बात आ रही है कि आप उनकी तरह एक पूरी मुहिम को खड़ा करने की कोशिश करना चाह रहे थे जैसा अरविंद केजरीवाल ने किया। मैं अरविंद केजरीवाल का नाम ही पता है, वो दिल्ली का मुख्यमंत्री, और मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं। आप उनके प्रतिनिधि हैं यहाँ पर? मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं, प्रतिनिधि कैसे बन जाऊंगा? मैं तो मोदी जी का भी प्रतिनिधि हूँ, जनता दल के नीतीश कुमार का भी प्रतिनिधि हूँ, समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह का भी प्रतिनिधि हूँ, आनंदीबेन का भी प्रतिनिधि हूँ, सबका प्रतिनिधि हूँ। आम आदमी पार्टी का काम तो आप यहाँ देखते हैं पूरा। किसने बोला है यार? चलिए लास्ट में है नहीं तो क्यों बात? चलिए मैं लास्ट में एक सवाल, अब आप सरकार से क्या मांगे आपकी, बस ये बता दीजिए, सरकार से अब क्या मांगे आपकी? सर आप डाइवर्ट कर रहे हैं बंदे को, मैं जो नहीं है तो फिर क्यों बात? ठीक है, मैं अब आखिरी में इसीलिए पूछ रहा हूँ कि सब, तो पहला सवाल मेरा ये, जो बात लगातार आ रही है, आपने वहाँ एक दिन लोगों के साथ जनसभा करने की परमिशन ली और उसके बाद आपने खुद से ये तय कर लिया कि आप वहाँ अनशन पे बैठेंगे, ये आपके हिसाब से कहाँ तक सही है? आपने परमिशन नहीं ली, आपने पुलिस की परमिशन नहीं ली, एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं पूछा, फिर कैसे तय किया आपने कि आप सबके साथ वहाँ अनशन पे बैठ जाएंगे? 13 लाख पब्लिक थी और 2 प्लान थे हमारे। अगर पब्लिक ज़्यादा हो जाती है तो हमें रैली भी करनी और अनशन पर बैठना है, ताकि पूरा ही 13 लाख पब्लिक रोड पर ना निकल जाए। अगर रोड पर निकल गई तो कितना अफरा तफरी मच सकता है। तो हमने वहीं पर मैंने तय कर लिया कि भाई हम यहीं पर आवेदन पत्र देंगे, मुख्यमंत्री को यहीं पर बुला लेते और वो खुद हमारा आवेदन पत्र ले ले। तो हमने ये सोचा फिर भी पब्लिक बोल रही थी नहीं रैली करनी, हमने कहा चलो ठीक है रैली भी करते और अनशन भी करते, कुछ लोग रैली में जाए कुछ लोग यहाँ बैठ, ताकि पब्लिक डिवाइड हो सकती है, यहाँ से वहाँ हो सकती है और कोई अफरा तफरी ना मचे, इसीलिए। और ये हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो अहिंसा का मार्ग पर चलने वाले आदमी हैं। फिर भी ये पूरा पॉलिटिकल रिव्यू था और पुलिस ने कॉर्डन कर लिया पूरा मंच और तुरंत ही मारने लगी, ऐसा वगैरह कुछ हो गया। भाव सारे नमावी गयो ए भूली सोइए। मेरा सवाल अभी भी वही है, जब आपको परमिशन नहीं थी, अनुमति आपने प्रशासन से, सरकार से, पुलिस ने नहीं ली थी, फिर कैसे बैठ सकते हैं आप अनशन पे? क्योंकि कहीं भी आपको अगर बैठना है, आप जितना टाइम मांगते हैं कि हम इतने देर जनसभा करेंगे, आज पूरे दिन करेंगे और सिर्फ आज ही करेंगे, उसके बाद आप वहाँ अनशन पे बैठ जाएं, लगातार लोग आपके साथ बैठ जाएं, इसके लिए तो आपको अनुमति की ज़रूरत है। आपने ये तय कैसे किया कि आप बैठेंगे वहाँ बिना अनुमति के? आतंकवादी घुसता है हिंदुस्तान में, अनुमति लेकर घुसता है, घूस लेता है, सड़े आम 147 या 180 लोगों को मार देता है, फिर भी उसे 4-5 साल तक आराम से बिठाते हैं जेल में, खाना खिलाते हैं, अमिताभ के पिक्चर दिखाते हैं, बिरयानी खिलाते हो। तो ये देश की, लेकिन ये मेरे सवालों का जवाब नहीं है, आप तमाम अलग अलग चीज़ों पे बात कर रहे हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ कि इतनी सारे पब्लिक है तो क्या परमिशन मांगने जाना चाहिए?
जो सही है उसे सही तौर पे दिखाओ। हम तो वहाँ कोई नक्सलवादी पैदा तो नहीं कर रहे, कोई आतंकवादी पैदा तो नहीं कर रहे।